Very good morning, students. I hope you and your family are safe at home, and students, and I must depending and confident on you that you are reading with me the chapters I'm learning at home. And today we are continuing our chapter number 10, the turning point. In the previous class, what we have learned or what we have studied, that how when Ear Ridgway, who has been written a chapter, when entered the school, which he did not want actually. He doesn't want to be a teacher, but being a teacher, I'm just being a very honor that I got too much respect, too much love from my students. So after joining the school, E.R. Brathwaite has so many difficulties to face by the students because students were not liking him. Why? As you know, because of his color. But he did not went back. He just faced his every difficulties, everything, and he just won the heart of his students. So, in the previous class, what we have done that how the denim has wanted that Ear Bridget just started the boxing match because he was very good in the boxing match, and it was all pre-planned by the team, by the students, that it should be a boxing match because they want to see that how he was. That's why the Spino, who was like showed that his right arm from elbow to wrist is a damage, like it's just put the bandage on it. But when the Danny asked Braithwaite to do a match with him, firstly, the Ian Braithwaite denied because he does not want to show anything to the students. But as he know that it's a very crucial time to see that he's not like the other teachers as well as, so he just continued with the students and he just said yes in the last what we have done. So we will continue. Today we will cover our page number, English page number 75, the chapter number 10. So just open your books, take a pencil and underline the hard words as you are not even knowing the meaning, as you are not using in your daily life. Okay, then, okay, just we are going to start reading. I took a pair of gloves from the horse, poured the steam over and expertly secured the laces for me while Spino, strangely unhampered of his mysterious injury, did the same for Daniel. The others meanwhile raised themselves along the wall, silent and expectant. यहाँ पे आई यहाँ पर कौन है ईयर ब्रेथवेट वो क्या कह रही है कि मैंने वहां से होश से क्या लिए ग्लव्स का जो पेयर था मैंने वो उठा लिया आई यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ईयर ब्रेथवेट को बताया गया है ठीक है और पोर्टर पोर्टर क्या था उनका एक स्टूडेंट का नेम है वहां पर स्टीव डोगर का मतलब ये है कि उसने आगे बढ़कर क्या किया जो ग्लव्स थे ठीक है उसने जो लेसिस की जो मतलब ग्लव्स डैनी ने मतलब डैनी और किसने पहन लिए थे ईयर ब्रेथवेट ने पहन लिए थे और पोर्टर ने तो ईयर ब्रेथवेट के जो अपने टीचर थे उनके जो ग्लव्स को जो है सिक्योरली टाइट लेसिस बांध दिए थे सेम ये चीज डैनी के लिए किसने की थी स्पाइनो ने करी थी ओके स्पाइनो वही पर्सन था वही स्टूडेंट था जिसने ये शो ऑफ करा था कि वो क्या है इंजर्ड है उसका राइट आर्म क्या है इंजर्ड है और सडनली आउट ऑफ पता नहीं कहीं से भी उसका वो जो दर्द था जो इंजरी थी वो बिल्कुल सही हो जाती है और उसने जो है डेनिम का खड़े होकर क्या करा कि ग्लव्स बांध दिए तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इट वॉज ऑल प्री प्लान as he began to box, it became clear that Danning's reputation as a boxer was truly justified. He was fast and secured easily. Though his blows were not delivered with his full weight, I tried to dodge and parry as best I could, being only concerned with riding this out for a little while until I could reasonably stop it. I had stupidly allowed myself to be lured into this one, but it was up to me to extricate myself with the little damage to either dignity or a person as I could.
अब यहाँ पर स्टार्टिंग में जब भी मैच स्टार्ट हुआ, बिगिन बिगिन यहाँ पर किसकी सेकंड फॉर्म है, ये आपको बताना है मुझे एज अ क्वेश्चन। बिकम क्लियर दैट जो डेनिम की जो रेपुटेशन थी एज अ बॉक्सर, वो बहुत ज़्यादा क्या थी, अच्छी थी। ठीक है, वो जस्टिफाई कर रही थी कि वो क्यों इतना अच्छा एक बॉक्सर है, बिकॉज वो जो है बहुत ही आराम से स्कोर भी कर सकता था और वो फास्ट था। दो द हिज ब्लोज वर मतलब लेकिन उसके वेट के अकॉर्डिंग जो ब्लो यानी कि जो पंच कर रहा था इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे, क्योंकि वो ज्यादा अपना क्या लग रहा था, जोर लगा रहा था, ज्यादा कहते हैं ना कि शो ऑफ करना, वो शो ऑफ कर रहा था उस टाइम। उसने आई मतलब कि एयर ब्रेथवेट ने कोशिश भी करी कि वो उसको डॉज करके पैरी, डॉज और पैरी देखो ये जो है बॉक्सिंग की क्या रहते हैं, ये ट्रिक्स रहती हैं कि वो उसको डॉज करके वहां पर खत्म कर दे। बेस्ट आई कुड बीइंग ओनली कंसर्न, सिर्फ उनका एक ही छोटा सा कंसर्न था। कंसर्न जब हम किसी के प्रति जब केयर दिखाते हैं ना, मतलब जो शो करते हैं कि हाँ हमें फर्क पड़ता है, दैट इज बीन अ कंसर्न विद राइडिंग दिस आउट लिटिल वाइल अंटिल, मतलब या तो मैं जो ये बॉक्सिंग का मैच जो बिना अनरिजर्वली स्टार्ट किया गया था, इसको मैं इसी तरीके से खत्म कर दूं एक ही मिनट में, ठीक है, अपना जोर दिखा के, या तो जैसा बच्चे चाहते हैं मैं वैसे ही कंटिन्यू करूं। आई गेट स्टूपिडली अलाउड, अभी लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा कि वो अपनी तरफ से नहीं, उन्होंने अपना नहीं दिखाकर उन्होंने अपने स्टूडेंट्स का मन रखा, और वो बेवकूफों की तरह उसमें लिबरेट का मतलब होता है जब हम किसी चीज में फंसते हैं ना, उसको बोला जाता है लिवर्ड इनटू दिस वन एंड इट वाज अप टू मी, यानी कि ये सब एयर ब्रेथवेट पे डिपेंड था कि वो अपने आप को एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपने आप को ये दिखाना कि वो या तो जो दिखते हैं वो वैसे ही हैं। उन्होंने ये भी कहा यहाँ पर कि विद द लिटिल डैमेज, कि मैं थोड़ी सी से चोट खाकर जो है या तो डिग्निटी के साथ, मतलब कि रिस्पेक्ट के साथ, यहाँ पर डिग्निटी का मतलब यहाँ पर रिस्पेक्ट है, डिग्निटी के साथ इस मैच को खत्म कर दूं या फिर ऐसे खत्म करूं जैसा मैं हूँ। Come on, sir, go after him. I recognized Patrick Fanema's voice. Disappointment was pregnant in it. They must all be somewhat surprised that my name was. अभी यहाँ से पेट्रिका फैनेम एक जो है फीमेल स्टूडेंट थी, एक फीमेल स्टूडेंट थी जिसकी आवाज आती जोर से कि सर जाओ उसको हरा दो। और ये जो डिसअपॉइंटमेंट यानी कि जो निराशा थी ना उनकी बोलने के तरीके में, इग्नोरेंट का मतलब होता है कि जब हम किसी को इनकरेज भी कर रहे हो लेकिन उनको जो है एक ताने कस रहे हो कि हाँ, कि एक निराशा दिख रही थी कि हाँ जी आप उसके पीछे जा सके, उसको हरा सकते हो या नहीं। और सभी देर मस्ट भी सबको ये लग रहा था कि मेरे जो एफर्ट्स हैं ली मैंने, इनका मतलब होता है कि बिल्कुल जीरो के बराबर है, मतलब कि मैं कुछ काम कर ही नहीं रहा। Suddenly, Denim moved in and hit me in the face. The blow stung me, and as I could feel my eyes filling up the tears, the salt blood in my mouth signaled the damage. I was angry. Now, this was no longer a pleasant little affair, the fellow meant business. It may have been the sight of blood on my face or the instant urging of his cronies to go after I am, whatever it was. It felt dense and new. Guard open, he rushed in and I hit him. My glove fist sank deep into his solar plexus and other air slide out of him. He's doubled up and collapsed on the floor. अभी इतने में क्या हुआ कि डैनिम ने अपना सारा जोर लगा कर ना क्या किया कि अपने टीचर के फीस पर हिट कर दिया। अब हिट करने से वो सीधा उसके डैनिम के क्या हुआ कि ईयर ब्रेथवेट की फीस पे जाकर लगा, और फीस पे लगने से क्या हो गया कि सबको ये लगा कि मतलब जो टीचर है वो कुछ भी नहीं कर सकता, और इसी से जो है कहीं ना कहीं ईयर ब्रेथवेट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ठीक है, और जैसे ही वो क्या करते हैं कि जैसे ही सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है, ठीक है, देन ही जस्ट started his position and showed them that what he is। जैसे कि पेट्रिका फैनम की आवाज आई थी कि गो आफ्टर हिम, तो वो ये लाइन यूज करके बोलते हैं कि गोइंग आफ्टर व्हाट आई एम, मतलब कि मैं उसी के पीछे जा रहा हूँ जिसने ये स्टार्ट करा है। यानी कि जो एक मजाक मजाक में बॉक्सिंग स्टार्ट की गई थी स्टूडेंट्स के द्वारा, वो लग ही रहा था कि वो एक मजाक था या फिर एक छोटा सा मैच था, उन्होंने इसको जो है सीरियस मैटर बना लिया था कहीं ना कहीं।
तो उन्होंने जैसे ही जो सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ, उन्होंने अपना जो है उसकी तरफ पंच करा, और पंच उन्होंने कैसे करा कि जो सोलर प्लेक्सिस क्या होता है, एक स्टमक का पार्ट होता है जो कि रिब्स के नीचे होता है, और जहाँ पे मारने से बहुत एक्सट्रीमली पेनफुल है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जैसे ही उन्होंने उसको पंच करा, डेनिक को पंच करा, वो एकदम से क्या हो गया, एकदम से नीचे कोलैप्स का मतलब होता है टकराना, ठीक है, वो एकदम फ्लोर पे गिर गया और अपने आप को उसने रिब्स पर, यानी कि जहाँ उसके चोट लगी थी वहां से वो पकड़ के वहां पर एकदम से डैश हो गया, यानी कि यहाँ पर ईयर ब्रेथवेट ने शोड दैट ही इज अ वेरी पावरफुल इन द सेंस कि उसको पता है कि कहाँ पर कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। There was a moment of stunned silence, and Porter and some other rushed to help him. Hold it, leave him where he is, and line up quickly for vaulting. Clark licked the gloves and stacked them by the door. To my unease, they obeyed with them, or while I hurried to Daniel and helped him over to a low form against the wall. He was only winded and would soon be right as rain. When he was comfortable, I continued with the PT lesson, which went without a hitch. The boys were eager to do their best and went through the previous movements without recourse to my prompting or direction. They knew. Now looked at me as if I had suddenly and satisfactorily grown up before their very eyes. अब इतने में क्या होता है, वहाँ पर बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। जैसे ही ईयर ब्रेथवेट जो है डैनिक को पंच करके डैश कर देते हैं, वहाँ पर बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, और सभी लोग जितने भी वहाँ पर स्टूडेंट्स थे वो क्या होने लग जाते हैं, उसकी हेल्प करने के लिए उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन इतने में ही ईयर ब्रेथवेट जो है सबको रोक देते हैं और कहते हैं कि जहाँ पर वो पड़ा हुआ है उसको वहीं पर रहने दो, नोबडी विल गो टू हेल्प हिम। और सभी को बोलते हैं कि सभी अपनी जो लाइंस में खड़े थे पहले, उसी लाइंस में दोबारा आके खड़े हो जाइए। और उनमें से एक स्टूडेंट था क्लार्क, जिसने जो है दोनों की, यानी कि ईयर ब्रेथवेट के जो ग्लव्स हैं लेके, सबके ग्लव्स उसने इकट्ठे करके जहाँ पर वॉल्ट पे लगे हुए थे वहीं पर जाके उसने रख दिए। अब उन्होंने वो ईयर ब्रेथवेट जो है, ये नहीं है, ही वाज नॉट लाइक दैट एरोगेंट पर्सन, और आई वांट टू से ही इज जस्ट लाइक अ सेल्फिश वन। He just wanted to show them that being a teacher is not even easy work or easy job to do. You have so many things to do. You have a lot of things in your life as well as like being black. He is not like an alien. He is just a human being. So he was just short. I wanted to show them that respect every person in a every color, every size. दिस इज व्हाट ही वॉन्ट्स। अभी यहाँ पर जो उनकी तरफ से किया गया, यानी कि उनकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, उससे क्या हुआ था कि सभी ने बिना कुछ आवाज किए, बिना कुछ बोले वहां पर उनकी आवाज मानी, विदाउट दैट मतलब ये है कि बिना कुछ आर्गुमेंट किए हुए, ठीक है। अब इतने में ही ईयर ब्रेथवेट जो है वो हरिट, यानी कि उसके तरफ जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प करने के लिए, तो उसको आराम से एक जगह पे बिठा लेते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा सेटल डाउन होता है, वो अपनी जो पीटी लेसन है वो अपना कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद सभी लोग जो है बिना कुछ मतलब कुछ भी रिएक्शन दिए हुए ना, उनकी बात को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब सबकी आंखों में क्या था, जहाँ पर पहले सबकी आंखों में जो है एक मजाक था, ठीक है, अपने टीचर एक मजाक लग रहा था, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक जीरो लग रहे थे अपने टीचर, वहीं पर वो टीचर के लिए उनकी आंखों में क्या थी, एक रिस्पेक्ट थी स्टूडेंट्स की आंखों में। दे वर रिस्पेक्टिंग हिम अ लॉट, दे आर नॉट टेकिंग हिम लाइक अ जीरो और अ नी पर्सन। At the end of the lesson, I dismissed the class and went over to the tenant. He still looked at a bit peeved. There was a just lucky bunch old man. No harm, man. Why don't you pop up the washroom and soak your head in some cold water? You will feel a better. Yes, sir, his voice was shaky, but there was a hesitation and mimicry. There was no hesitation and a mimicry about the sort. I helped him so to his face and he signaled to Porter, who went out with him towards the washroom. That incident marked a turning point in my relationship with the class.
अब यहाँ पर जैसे ही वो क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो डाइनिंग की तरफ जाते हैं और उसको एक जगह पर उसको कहते हैं कि मतलब ये जो पंच मैंने तुम्हें मारा ना, ये बहुत ही अच्छा पंच था, मतलब तुम बच गए, मैंने तुम्हें ऐसा कुछ किया नहीं। ठीक है, वो कहते हैं क्यों ना तुम वॉशरूम जाके अपना हेड जो है बिल्कुल पानी में डालो और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो। अब जो आगे से नदीम का रिप्लाई था, उसमें वो थोड़ा सा शेकी तो था, लेकिन उसमें ना तो कोई संकोच हेजिटेशन जो होता है कि ना तो ऐसी कोई मिमिक्री, यानी कि ना तो उसमें कोई नकल थी और ना ही कोई हेजिटेशन थी। वहां पर उसने जो सर बोला उसमें एक रिस्पेक्ट थी कि यस सर आई विल डू। और यहाँ पर पोर्टर जो है वो वॉशरूम में लेकर जाता है, जैसे कि एयर ब्रेथवेट ने पोर्टर को बोला था। और ये जो पॉइंट था, ये जो एक पॉइंट था, यहाँ से टर्निंग पॉइंट हो गया था। किस चीज के लिए टर्निंग पॉइंट? रिलेशनशिप में बिटवीन द स्टूडेंट्स और एयर ब्रेथवेट। अब इसके बाद क्या हुआ, वैसे आपका जो चैप्टर है मोस्टली यहीं पर खत्म है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि आफ्टर बीइंग इन द क्लास, आफ्टर व्हेनेवर हु इज गोइंग टू दैट क्लास, nobody is disrespecting their teachers, nobody is doing any kind of mimicry or any challenge to their teachers. They just respect him, they just give them love what the teacher deserves. This is all in this chapter. If you are going to reading the last lines, if in your book, in your chapter, there's a nothing has been added extra. There's just a moral that respect your teachers, whether his or her color is black or white, whether whatever they are in size. Don't be a racist. Don't be provider racism towards to anyone. So, and and he just showed one more thing. Just be confident about yourself. डोंट बी लाइक कि अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है इस तरीके से कि हाँ मैं ये हूँ, कोई किसी ने आपको आपका मजाक बना दिया, किसी ने आपको ये बोल दिया कि हाँ जी मतलब आपकी हाइट छोटी है, आप ऐसे हो वैसे हो, तो आपको उससे उसका जो है बिल्कुल शो होके जो है फाइट करनी चाहिए उसके थ्रू। ठीक है, और शो ऑफ करना चाहिए कि वट एवर इट इज, बट आई एम वट एवर माई साइज, माई शेप, माई कलर इट इज, I have just a confident about myself. I know I have so many capabilities in myself, and I know how can I indulge myself into that kind of capabilities. So this is all about this chapter, and as I have already given you one more thing about doing a 5 questions from this page, like from page number 75 to 76, we have just covered up in this video. I hope you enjoyed it a lot and you got your moral lesson in that one. Got your moral values that be respectful for your teachers, be respectful for your elders, and be respectful for your studies because it is very worth it. So just watch the video very carefully. Do if you have any question, you can ask me. I am not having any issue kind of this one. Till then, just be at home and enjoy your learning classes, which is a very useful for you. And have a good day. Thank you.